ये दरवाजा फिर प्लीज तो yes, join fast. Everybody join. मम्मी और भी Yes, beta, ready? Students, ready, beta? Yes, sir. Good morning, sir. Yes, good morning, everybody. Good morning. sir. Good morning, sir. Good morning, beta. ये ढेर पढ़े में तेज बड़ी से ना Yes, hurry up, hurry up. Ready? Ready, students? Yes, sir. Yes, okay. sir. Okay, okay. Yes, yesterday I taught Unit 8, the game, right? You have any problem? Student? No, sir. Any No, confusion? sir. Okay, beta. No, sir. Okay. Yesterday I also sent some homework at the evening. I hope that that work would be reached at you या to you. पहुंच गया था आपके पास जो वर्क हमने कल थोड़ा सा भेजा था? Yes, sir. Okay. चलिए next the poem. Yes, sir. Next the poem is vacation. VOCATION. वाकेशन मीन्स होता है व्यवसाय, धंधा. प्रोफेशन भी इसका दूसरा वर्ड आप समझ सकते हैं. बिजनेस भी कह सकते हैं. आर यू हियरिंग मी एवरीबॉडी? Yes, sir. यस बेटा. Yes, sir. द पोयम का जो नाम दिया गया वाकेशन, इसका मतलब होता है, इसका मीन्स होगा बिजनेस, प्रोफेशन, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं व्यवसाय, रोजगार, धंधा, लाइक दिस. लेट अस सी जस्ट बिलो. उसके नीचे आप देखें इसमें क्या दिया है. फर्स्ट अलाउ बिफोर द स्टार्टिंग द पोयम लिसन सम लाइन्स रिलेटेड दिस टाइप द एरियाज. Generally, you find the chance to go different direction, different places that may be belong to your area or other cities or district level, state level, anywhere. Sure, you will have visit this type the area, or you will visit in the future time, and you will see that there are different type the person, they are connected the different type profession. Profession समझ रहे होंगे, व्यवसाय, business, and they are very busy to complete to do the work. Sometimes we pass this type the area, and when we saw very closely, बहुत नजदीक से देखते हैं, and when we also find, when we also know that how much they are getting the profit or loss, according to that situation, we also sometimes want to change ourselves and also become a business like the other person whom with sometimes. Yes, student, the noise is coming very fast, so this is not good. Please stop just now. Just stop from where this sound is coming. Stop. If you be silent, discipline mode, then possible what I am teaching you, and you will be understanding right now. Now everybody on unmute mode, right? See, noise was coming, so I am just do this. Please see.
I am telling to you that whenever you find the chance to go different type direction, that may be any profession, that may education, business, medical or IT sector, different direction you can see. Whenever you find any direction, you visit 2 or 3 days, 1 week, or more than 1 week, ensure you will be more effective by those businessmen, those areas men, those employees men who are very high level or low levels. Ensure sometime taking their benefit or loss, you also want to become like them if you also want to go that fields. हम ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसमें जो पोएट है, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी, आप पीछे देखेंगे दिया गया रविंद्रनाथ जी टैगोर जी, ये अपने विचारों को व्यक्त करना चाह रहे हैं कि जब वे विभिन्न प्रकार के एरिया से गुजरते हैं तो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रोफेशन से, व्यवसाय से जुड़े हुए मिलते हैं। वे इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास किसी अन्य बातों पे ध्यान देने का टाइमिंग नहीं होता जब वो बिजनेस टाइमिंग में होते हैं। तो इस तरीके से वे जो है कभी ये नहीं सोचते कि हमारा कपड़ा गंदा हो रहा है, खराब हो रहा है, फोल्ड हो रहा है, मोड़ रहा है या कैसा है, वे कैसे दिख रहे हैं, किसी चीज पे केयर नहीं करते। बस दियर टारगेट इज ओनली कंप्लीट दियर वर्क। रीजन इज दिस, वर्क इज वर्शिप, यानी वे अपने काम पे ध्यान देते हैं, काम पे ध्यान देना चाहिए। Like this also, the poet visit that this type the area, this type the person meet, he also want to become themselves. उनके समान, like them, also become to himself, वह स्वयं भी उनके समान बनना चाहता है। तो इस तरीके से हम इस जो है पोयम के बारे में इसके माध्यम से जानेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के माध्यम में दिमाग में कौन कौन सी बातें आती हैं और क्यों आती हैं, उनका इफेक्ट इनके लाइफ में क्या पड़ता है। सी, On your way to school or market, you see many people at work. देखिए इसमें जब लाइन फर्स्ट जो आ रही है, ये सब आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है कि on your way to school or market, you see many people at work. जब आप स्कूल जा रहे होते हैं या आप जो है मार्केट जा रहे होते हैं, बाजार जा रहे होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के लोगों को आप रास्ते में किसी न किसी काम में, किसी न किसी प्रोफेशन में, किसी न किसी बिजनेस में, जिसको ऊपर आपको जो सॉरी जो वोकेशन वर्ड दिया है मैंने पहले ही बता दिया, इसका मीनिंग क्या है, प्रोफेशन या बिजनेस। तो आप जब जाते हैं स्कूल या मार्केट तो किसी न किसी बिजनेस में लोगों को काम करते हुए, जुड़े हुए होते, व्यस्त जो है रहते हुए देखते हैं। श्योर आप देखते होंगे और नॉट, टेल मी, आप स्कूल आते हैं, कहीं जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे, आसपास में कहीं शॉप करने जाते होंगे, कहीं और जाते होंगे इन प्लेसों के अलावे, तो श्योर आप किसी न किसी को जरूर देखते हैं। कोई ड्राइवर हैं गाड़ी चला रहे हैं, कोई मिस्त्री हैं किसी चीज को बना रहे हैं, तो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, दे आर ऑलवेज बिजी। मुझे आशा है कि हमारी बात को आप गौर से सुन रहे होंगे और आवाज जा रही होगी। ओके बेटा, राइट आगे देखिएगा। इन द पेयर्स, पेयर्स मीन्स जोड़े में, यानी इट मीन्स कई बार लोग जो है ग्रुप में होते हैं, टू होते हैं, कई बार वन होते हैं, कई बार मोर देन टू होते हैं। अकॉर्डिंग टू नीड दे आर वर्किंग या दे आर हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। लिसन देयर, डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस, इसमें आओ हम डिस्कस करें, अपने साथियों से, अपने पार्टनर से डिस्कस करें कि हमने क्या देखा रास्ते में जाते वक्त या स्कूल जाते वक्त, मार्केट जाते वक्त हमने क्या देखा। इट मीन्स इफ आई एम गोइंग टू स्कूल और मार्केट और एनीवेयर, व्हाट आई हैव सीन ऑन द वे, different type of people they are working, it means what I have seen during the school timing or work timing going. So we should discuss this type the matter to our friends, our classmates, our family member, our friends, anybody। हमें अपने डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए। इससे पता चलता है
कि हमने क्या नोटिस की, क्या देखा और वे लोग क्या कर रहे थे, उनका इफेक्ट, उनके वर्कों का इफेक्ट हमारे लाइफ में क्या पड़ा, हमारे दिमाग में किस प्रकार की बात चलने लगी जब हमने ऐसा एक्टिविटी, ऐसे वर्कमैन, ऐसे प्रोफेशनल पर्सन को या व्यक्तियों को देखा। तो ये सब डिस्कस करना चाहिए, राइट। आगे देखिएगा, देन रीड दिस पोयम, उसके बाद इस पोयम को आप क्या करो, पढ़ो। यू मे रीड इट अलाउड विथ पार्टनर, इट मीन्स the poet is describing here या suggesting us that this type the working या this type the situation, this type the ideas after seeing this direction person, different type the ideas come in the mind। तो उसके बाद ये कहत रहे हैं पोएट कि यू मे रीड इट अलाउड विथ योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ, फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ इस पोयम को जो है क्या करें, रीड इट अलाउड, तेज आवाज में, यानी थोड़ा साउंड आपकी आनी चाहिए, आप इसको पढ़ें। इफ यू लाइक, यदि आपको पसंद आए। Here the poet want to describe us that if you are going anywhere and you see different type the person who are connected different type the business, if you see, if you are affected anyway, so after that you should try to read this poem and also talk, also discuss related this poem with your partners with loud mood, तेज आवाज में बोल करके अपने पार्टनर के साथ पढ़ें, डिस्कस करें। इफ यू लाइक, यदि आपको पसंद आए। भाई कई बार हमें पसंद आता है कि हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम ज्यादा तेज में नहीं बोलेंगे, वो बात आपकी ऊपर निर्भर करता है कि विच टाइप आइडिया यू लाइक। लेकिन पोएट का ये कहना है कि अगर आप चाहें, अगर आप पसंद करते हो तो यू कैन डिस्कस विथ योर पार्टनर, योर क्लासमेट विथ लाउड साउंड, ठीक है, यानी तेज आवाज में आप बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आइए देखते हैं नीचे इसमें क्या दिया है नेक्स्ट लाइन में। हमारी आवाज आपके पास बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है क्या? इंडिकेट फ्रॉम योर हैंड। ओके बेटा, राइट। व्हेन द गोंग, GONG, गोंग, इसका मीनिंग होता है वॉच, घड़ी, दीवाल घड़ी कह सकते हैं, राइट। साउंड 10 in the morning and I walk to school by our lane। ध्यान दीजिएगा, here the poet want to tell us especially about of himself that when his watch indicate or ring 10 o'clock, 10 बजे जब वो बजती है घड़ी, कई बार आपने देखा होगा कुछ घड़ियों से आपको उसमें टाइमर सब लगे होते हैं, टाइमर फिक्स होता है, तो 10 o'clock या कोई भी टाइम फिक्स करेंगे तो उस समय जो है उससे आपको जो है किसी न किसी रूप में आपको साउंड आएगी। तो पोएट कहता है कि जब जो उसके पास दीवार पे जो घड़ी है 10 o'clock इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह में 10 बजे 10 बज जाता है तो वह बजने लग जाती है। एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन, लेन मीन्स होता है गली या रास्ता, तो तब जो है मैं गलियों से होता हुआ स्कूल के लिए चल देता हूँ, चलने लगता हूँ या जाता हूँ। ये बात कौन किससे कह रहा है? The poet is describing in front of us that when at 10 o'clock in the morning, when his clock began to ringing, the poet start to go या start to move to school through the lane। lane means रास्ता, through the way कह सकते हैं या रूट कह सकते हैं। 10 बजे जब घड़ी का अलार्म बजता है या इंडिकेशन मिलता है, पोएट जो है स्कूल के लिए गलियों से होता हुआ चल देता है। Every day I meet the how waker crying, bangles, crystal bangles, right? Every day means प्रत्येक दिन। I meet the how waker बोलते हैं फेरी वाले को। फेरी का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कई बार आपके आसपास गलियों में या रास्ते में या मार्केट में भी देखते रहते हो, कुछ लोग ठेले रखे रहते हैं, उसपे अपनी साग सब्जी या और तरीके का आर्टिकल, और भी तरीके का सामान हो सकता है, उस जो है ठेले पर रख करके अब वो जो है घूमते रहते हैं और बेचते रहते हैं। तो इस प्रकार के बेचने वाले लोगों को बोलते हैं हाउ वेकर। क्राइंग मीन्स चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। इट मीन्स हाउ वेकर दैट पीरियड पास
in that particular way when the poet goes to the school and they were howwaker, वे फेरी वाले होते हैं, as well as bangle, crystal bangles, and also they were belong to बैंगल सेलर्स, वे जो है कई बार चूड़ियों को बेचते हुए पाए जाते हैं। तो अभी जो है हाउ वेकर आप देख रहे हैं, मतलब हाउ वेकर फेरी वाला इसका मीनिंग होता है वे चाहे चूड़ी बेचे, सब्जी बेचे, व्हाट एवर दे कैन फाइंड दे कैन सेल। तो वे इस प्रकार की आर्टिकल को वे बेचते हुए पाए जाते हैं जब कभी जा रहा होता है कहां पर, स्कूल, और उनको यह देखता है। क्रिस्टल का मतलब होता है कांच का, जो आप बैंगल्स देखे होंगे और देखते रहते होंगे, मैक्सिमम आर मेड बाय द क्या चीज, क्रिस्टल, एंड आल्सो सम वेरी कॉस्टली मेटल मेड अप, आज देखा होगा आपने, जैसे सोने का भी बना होता है। तो दे आर डिफरेंट आर्टिकल, डिफरेंट टाइप द मेटल दे आर मेड ऑफ, पार्ट मेड ऑफ बैंगल्स, बट हियर इज डिस्कसिंग ओनली क्रिस्टल बैंगल्स, राइट, जो कांच का बना होता है। बेटा आर यू कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग, राइट। आगे देखिएगा, देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, इसमें ये बताया जाता है, पोएट कहते हैं कि देयर इज नथिंग टू हरी, कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, हिम उनके लिए, देयर इज नो रोड द ही मस्ट टेक, और कोई ऐसा जो है रास्ता नहीं है कि नहीं उनको इसी रास्ते से जाना है, ही मस्ट टेक, उसी पे चलना, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द चॉइस दे कैन मूव, दे कैन गो एनी रूट, एनी वे, रूट का मतलब रास्ता, वे का भी मतलब रास्ता ही है, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू द चॉइस दे कैन गो एनी वे, किसी भी रास्ते से वे लोग जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, अथवा कोई ऐसा नहीं कि उस प्लेस पे न जाएं वे लोग, ऐसा भी नहीं है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और कोई भी उनका ये टाइमिंग नहीं होता है कि वे कब घर लौट करके आएंगे, कौन लोग घर लौट करके आएंगे, कौन किस रास्ते में जाएंगे, कब जाएंगे। तो दे आर हाउ वेकर्स, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग स्पेशली अबाउट ऑफ द हाउ वेकर, दैट दे मूव एनी वे एनी टाइम एंड एनी रूट कर सकते हैं, एंड देयर इज नो फिक्स टाइम व्हेन दे विल रिटर्न फ्रॉम सेलिंग देयर आर्टिकल टू होम, बेच करके कब घर लौटेंगे, देयर इज नो फिक्स टाइम, सही या निश्चित समय नहीं है, कई बार वो जल्दी भी आ जाते हैं और कई बार देर से भी, उनके जो है बिजनेस का चलने के ऊपर डिपेंड करता है, सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखिएगा, आई विश, जब पोएट इन लोगों को देखता है तो देखिए उसके दिमाग में क्या घूमता है। आई जहां पे वर्ड दिया हो, मी दिया हो, माई दिया हो अथवा माइन दिया हो, तो तुरंत आप समझ जाएं कि इसका मतलब पोएट जो है अपने बारे में कहना चाहता है, राइट। हियर यू कैन सी आई विश, आई मीन्स पोएट अब कह रहा है, पोएट की इच्छा है, विश मीन्स इच्छा है, क्या इच्छा है, आई विश आई वर ए हाउ वेकर, जब उनको देखता है किसको, हाउ वेकर्स हो, तो ही इज वेरी वेरी इफेक्टेड बाय देम, and he also become to as a क्या चीज, hawker, he also want to become a hawker, he also want to sell like them different type the article, crystal bangles, any vegetables, other article, जो इसको पसंद है कुछ भी बेच सकता है, बट इतना प्रभावित हो जाता है कि देखने के बाद तुरंत जो है वह चाहता है कि हाउ वेकर बन जाए। कई बार हमारे आपके सामने आता है, कोई टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि यू शुड आल्सो बिकम अ टीचर। इफ यू सी एनी लायर्स हियर वर्किंग इज वेरी गुड, वेरी ही लुक्स वेरी स्टाइलिश, यू आल्सो वांट टू बिकम अ लायर्स। इफ यू सी एनी इंजीनियर, एनी डॉक्टर, अदर प्रोफेशंस, you are so effective by that person, that sure that period, that time, or some days, that type that you are continue moving and you want to become like them. तो ऐसा ही also the poet is so effective that particular how waker that he also want to become a how waker and वह बन जाना चाहता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या कहते हैं आगे,
स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल क्रिस्टन बैंगल्स, वह कहता है कि मैं भी जो है एक हाईवेकर बन जाना चाहता हूं। एंड ऑल्सो वांट टू पास माई टाइम ऑन द रोड क्राइंग द क्रिस्टल बैंगल्स ऑन द वे ऑन द रूट ऑन द डिफरेंट लेन आर स्ट्रीट। वह कहता है कि मैं हाईवेकर बन करके अपना पूरा समय क्रिस्टल के बैंगल्स को यानी कांच के चूड़ियों को बेचते हुए पूरा दिन इन रास्तों में डिफरेंट टाइप के जगहों पे व्यतीत करना चाहता हूं। रीजन क्या है कि वह इतना इफेक्टिव है कि वह भी क्या बन जाना चाहता है, हावेकर। आइए देखिए नेक्स्ट। कई बार ऐसी फीलिंग्स सबके माइंड में आ जाती है जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट, when at 4 in the afternoon I come back from the school। फिर पोएट क्या कहता है, लिसन, कि आफ्टर क्लोजिंग आफ्टर ओवर द स्कूल, जैसे आपका स्कूल एक निर्धारित समय के बाद ओवर हो जाता है, लाइक दिस आल्सो द पोएट स्कूल ओवर ऑन द फिक्स टाइम 4 o'clock। जब क्लोज जाता है तो फिर स्कूल से घर को लौटने लगता है जैसे कि आप घर को जाते हैं। तो क्या कहता है कि when at 4 in the afternoon I come back from the school, it means when I am return from the school after 4 o'clock। तो क्या करता है, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। He describing here that after coming to school, yeah, during the coming from the school, he saw on the way there are different type the person, and especially he saw या ही सी, वह देखता है, क्या देखता है, गार्डनर, माली को बोलते हैं जो पेड़ पौधे या फूल पत्तों का काम करते हैं लोग खेतों में। तो उनके लिए बताया गया, खेतों में किसान लोग भी काम करते हैं, पर फार्मर का यहाँ पे सेंस नहीं, गार्डनर जिनका सिर्फ काम होता है किसी बाग में बागवानी से संबंधित वर्किंग को देखना, वाटरिंग देना, प्लांट को मेंटेन करना, बाकी और भी रिलेटेड वर्क है विद द प्लांट। तो दिस टाइप पर्सन इज कॉल्ड द गार्डनर। The poet describing his personal feeling that after over the school, when he is coming to home, he saw the gardener, he is digging means होता है खोदना, the ground जमीन को, यानी वह जमीन की खुदाई कर रहे होते हैं, कौन, गार्डनर। तो he is also affected by them, वह उनके द्वारा भी वह प्रभावित हो जाता, उनके कामों को देख करके, एक्टिविटी को देख करके प्रभावित होता है। He does what he likes with his spade। He does, वह करता है, what he likes, जो वह पसंद करता, with his spade means फावड़ा। यहाँ पे पोएट कहता है कि वह जो गार्डनर है वह अपने फावड़े के साथ, जो खोदने वाला स्टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, तो उसके द्वारा जो है वो फावड़े के माध्यम से जितना चाहे या जो चाहे वह कर सकता है, इन मीन्स खुदाई कर सकता है। He soils his cloth, ध्यान दीजिएगा, with the dust, इसके साथ साथ वह जो है मिट्टी से, धूल धक्कर से अपने कपड़ों को खराब कर लेता है, गंदा कर लेता है। Nobody takes him to task, कोई भी उसको किसी भी तरीके का या किसी भी वे में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और ना ही वो खुद डिस्टर्ब होता है, उसको इस बात से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, निगेटिविटी नहीं आती है कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड विद द हेल्प ऑफ स्पेड एंड हिज ऑल क्लॉथ्स और हिज बॉडी इज टोटली डस्टेड, गंदा हो गया है, नो केयरिंग, इससे कोई वो केयर नहीं करता। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, ये दिया गया है कि इफ ही गेट्स बेक्ड, यदि वह धूप में जो है, जिससे बहुत ज्यादा धूप हो जाती है तो हमारी जो स्किन है वो झुलस जाती है, या बहुत हीटिंग गर्मी लगने लग जाती है, इन स्पाइट ऑफ, वह ऐसी हालात में, इन सनी टाइमिंग, धूप के समय में, ही नेवर फील बैड और सैडनेस, उसको किसी प्रकार की बुरा भाव या निगेटिविटी नहीं आती। आर गेट्स वेट, या जैसे रेन होता है, बारिश होती है, दैट पीरियड ही आल्सो वेटेड, वह भीग जाता है। इन दैट पीरियड आल्सो ही नेवर फील्स बैड, वह बुरा नहीं मानता।
It means both conditions. That might be sunny or raining time. He never feel any sadness or any bad feelings. He also take full enjoy, and this both timing, raining timing or sunny timing, both timing he take fully enjoy and do his work. अपने काम को कर, right, like this. Next number. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Poet is also described again by that gardener, and he also want to become a gardener and work like a gardener in the garden. And he also like that nobody should be disturb him is poet during the digging time. यानी वह इतना प्रभावित हो जाता है कि वह फिर पहले तो उस क्रिस्टल वाले से, यानी कहने का मतलब आपके हाउ वेकर से प्रभावित हुआ, वह जो एक हाउ वेकर बनना चाहता था। यहाँ पर जो है गार्डनर से प्रभावित हो जाता है और गार्डनर बनना चाहता है। He also said that nobody should disturb him during the working time or digging time. जब वह खुदाई कर रहा हो तो कोई भी उनको डिस्टर्ब न करे, ऐसा उसकी इच्छा है, उसकी कामना है, वह चाहता है। नेक्स्ट सी बेटा, यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। आगे देखिएगा। Just as it get dark in the evening and my mother sent me to bed. ध्यान दीजिएगा, just as it get dark मीन जब अंधेरा होने लगता है, रात होने लगती है, शाम होने लग जाती है, द इवनिंग शाम को, एंड माई मदर सेंड मी टू बेड तो उसके समय, उस दौरान मेरी माँ मुझे बिस्तर पे भेज देती है। इट मीन्स the poet is describing that when it is going on, या when it is becoming the evening or darkening, that period my mother suggests me, says me to go to the बिस्तर to take rest. It means to sleep. सोने के लिए बिस्तर पे भेज देती है। कौन भेज देती है? पोएट्स मदर, पोएट की मां। ध्यान दीजिएगा। I can see through my open window the watchman walking up and down. ये ध्यान दीजिएगा। देखिए कवि जो है कितनी फीलिंग्स अपने लाइफ में शेयर करता है कि जो जो देखता है उन सभी लोगों से प्रभावित हो जाता है। I can see through my open window, वह कहता है कि in the night time, it means when I go to bed to take rest, at that period he saw outside, वह देखा, या he see outside through the window, विंडोज के बाहर जब वो देखता है तो क्या देखता है? There is a watchman, he move here and there again and again for the guarding, for the safety of the houses. घरों की देख रेख करने के लिए वह वॉचमैन जो है कंटिन्यू गलियों में, रास्ते में क्या करता पाया जाता है? टहलता हुआ। ध्यान दीजिएगा। तो ही डिस्क्राइबिंग अबाउट द वॉचमैन वर्क। नेक्स्ट, द लेन इज डार्क एंड लोनली। जो लेन है वो कैसा है? डार्क है, अंधेरा है, एंड लोनली, अकेला है। द पोएट डिस्क्राइबिंग हियर दैट इन व्हिच वे, इन व्हिच लेन द वॉचमैन मूव हियर एंड देयर, देयर इज वेरी डार्क, या डार्क ही कह सकते हैं, अंधेरा है, एंड लोनली, एंड देयर इज नोबडी मूविंग इन दैट पार्टिकुलर लेन विद द वॉचमैन। वॉचमैन के साथ कोई भी मूव नहीं करता, घूमता नहीं है। इट मीन्स लोनली मोड, इट मीन्स एलोन। द पोएट, सॉरी, द वॉचमैन मूव इन दैट लेन, दैट स्ट्रीट, उस गली में घूमता है। एंड द स्ट्रीट लैंप स्टैंड, एंड द स्ट्रीट लैंप स्टैंड का मतलब है इन दैट पीरियड, इन द नाइट पीरियड, व्हेन द वॉचमैन इज गार्डिंग और वॉकिंग इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट, दैट पीरियड, दैट टाइम, देयर इज
द लैम्प, लैम्प का यहाँ पे सेंस से देखते होंगे आप, इलेक्ट्रिकल जो लाइटें लगी होती हैं उसके लिए बताया गया। स्टैंड मीन्स खड़ा होना, इट मीन्स ओनली द इलेक्ट्रिक लाइट या स्ट्रीट लाइट इज गोइंग ऑन और लाइटिंग कंटिन्यू। तो दिस इज द वर्ड हियर इज यूज, द लैम्प स्टैंड ओनली फॉर द लाइट, in which street light, electric light. Like a giant with one red eyes in its head. उन लाइटों को जो है पोएट कंपेयर करता है किससे? तो जाइंट मीन्स राक्षस, दानव कह सकते हैं। उनकी आंखें रेड कलर की होती हैं, किनकी? जाइंट्स की। तो वही बताया गया है कि जो लाइटें कंटिन्यू जो जलती रहती हैं, तो दैट कंटिन्यू लाइटिंग इज कंपेयर द आईज ऑफ जाइंट हुज कलर इज रेड, राइट, उनका कलर रेड होता है, इस वजह से ये आपको कंपेयर किया गया। इन इट्स हेड, उनके सिर में या सिर पे। द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। ध्यान दीजिएगा, द वॉचमैन स्विंग्स, यानी जो वॉचमैन है, स्विंग्स मीन झूला झूलना होता है। झूला झूलने का यहाँ पे सेंस नहीं है। यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर आपके पास लाइट आसपास में है या आप हाथ में कोई लालटेन या टॉर्च या कुछ भी ऐसी लाइट से युक्त चीजें हैं, जब आप चलते हैं तो चलने के दौरान कई बार जो है लाइट में आपकी जो शैडो है, जो परछाई है, वो मूव करते हुए आपके साथ साथ चलती है। ऐसा लगता है कि आप चल रहे हैं तो वो भी चल रही। तो दिस सिचुएशन इज डिस्क्राइबिंग हियर, क्या चीज? वॉकिंग या मूविंग कह सकते हैं या चलते हुए कह सकते हैं। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और इस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी यानी पोएट डिस्क्राइबिंग अबाउट द वॉचमैन दैट इन द होल नाइट he don't take rest, he never goes to the bed to sleep, वह रात में कभी सोने के लिए नहीं जाता, but also whole night he walk, he pass only walking and walking in that particular state in which he is on duty, जो इसमें उसकी ड्यूटी लगी होती है। I wish I were a watchman walking the street at all night. After seeing the working of that watchman, the poet Isminda Rabindranath Tagore, he is so affected that he also again want to become a watchman. तो वही कह रहे हैं कि आई विश, मेरी इच्छा है, आई वर ए वॉचमैन, मैं एक वॉचमैन होता। यहाँ देखिए आई के साथ वर लगा हुआ, ऊपर भी वैसे आए हुए हैं वर्ड, आई विश के बाद आई वर। तो आपने आई के साथ हर जगह वाज देखा होगा, राइट, आई वाज गोइंग, आई वाज रीडिंग, देखा होगा आपने। लेकिन यहाँ पे आई के साथ वर इसलिए लगा है कि जब हम किसी चीज के लिए कामना करते हैं कि मैं ऐसा होता, मैं डॉक्टर होता, मैं क्लास को फर्स्ट रैंकिंग ला देता क्लास में, हम सबसे पहले जग जाता, यानी किसी न किसी चीज का विशिंग होती है, इच्छा होती है आपकी, मैं भगवान के पास चला जाता या भगवान मेरे पास आ जाते। हम जब कोई ऐसी कामना करते हैं तो इन दैट पीरियड, राइट, इन दैट पीरियड आई आल्सो यूज द वर्ड इन प्लेस ऑफ वाज, राइट। तो दिस इज द रीजन, इसको आप किसी गलत सेंस में न ले जाएं कि नहीं ये इनकरेक्ट हो सकता है, नहीं, विशिंग के दौरान हम आई के साथ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा क्या कहते हैं कि वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, और उनकी ये हार्दिक तमन्ना है, उनकी हार्दिक इच्छा है कि आल्सो इन द नाइट, होल नाइट ही मूव लाइक दैट वॉचमैन, यह भी उसी वॉचमैन की तरफ टहलते, क्योंकि ये क्या बन जाते? वॉचमैन। चेसिंग द शैडोज विथ माई लालटेन, और मैं अपनी लालटेन के साथ उस शैडो का, उस परछाई का, शैडो मीन्स परछाई मतलब है, यानी जो व्यक्ति चल रहा है, मूव कर रहा है, या भी कभी आप देखिएगा, देखे भी होंगे, अगर लाइट में आप कहीं भी चलेंगे आएंगे तो आपकी परछाई तुरंत बन जाती है,
धूप में भी कई बार हो जाता है, जैसे हमारे सनी टाइम में दिन में आप कहीं खड़े हो जाएं धूप में तो तुरंत आपके पीछे कहीं ना कहीं आपकी जो है शैडो बन जाएगी। तो लाइक दिस आल्सो द पोएट इज डिस्क्राइबिंग हिज पर्सनल व्यूज दैट ही आल्सो वांट टू बिकम अ वॉचमैन एंड लाइक दैट particular watchman he also want to do the work in the night with taking the lantern and also move here and there again and again whole night, and he never liked to go to the bed in the night. So in this way the poet is describing his personal views, right? अब आइए हम आपके साउंड को ओपन कर रहे हैं और आपके तरफ से क्वेश्चन क्या रहा है देखते हैं। पढ़िए और बढ़िए। यस स्टूडेंट्स, आई होप सर लास्ट पैराग्राफ में जो सर लास्ट वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन बता दीजिए। लास्ट कौन सा पूछ रहे हैं? लास्ट लाइन का? यस सर, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट वर्ड LANTERN। ये लालटेन लिखा हुआ है, लेकिन इसको जो हम बोलते हैं तो एक तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं लालटेन बोलते हैं ना, तो ये लालटेन यस सर। इसको लालटेन नहीं बोलेंगे, तो हम वैसे बोलते हैं, पर लालटेन लिखा हुआ, लालटेन, राइट? इसमें ओके सर, थैंक यू हाँ, सर। तो इसका यस सर। यस इसका मीनिंग जो है लालटेन से ही है, जो जनरली आपने देखे होंगे। अब बहुत कम इस्तेमाल होने लगा है, पर समटाइम्स यू सी दिस टाइप आर्टिकल नियर बाय योर एरिया। सर पर अभी भी कहीं कहीं होता है। कहेंगे। हाँ बिल्कुल होता है। क्या बेटा? यस लालटेन बोलेंगे, लालटेन, राइट? हेलो, यस सर। चलिए अब जरा ये Yes, बताएं, sir. किसी तरीके का एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज आस्क। किसी तरीके कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, आप पूछिए। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम तो आपसे क्वेश्चन करते हैं, इस पोयम से संबंधित देखते हैं कि आप लोगों ने क्या समझा है। घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से हमारे क्वेश्चनों को सुनिए और जवाब दीजिए। यू कैन आल्सो आंसर इन हिंदी और इंग्लिश, बट यू शुड फोकस मैक्सिमम टू answering into English. Reason is this that you are already connected the CBSE and CBSE focus on English language, right? तो आप इंग्लिश में फोकस करिए, नहीं आएगा, नहीं समझ में आते तो हिंदी आप बोल सकते हैं, राइट? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकेशन? प्रोफेशन। प्रोफेशन Profession. प्रोफेशन। Yes, sir, profession. Very good, well done. Sir, Any profession. doubt? Any doubt for the प्रोफेशन। No, sir. नो सर। Right. नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When you go to school, what do you see on the way? People at work. We see many people at work. Many people at work. Many people at work. Very good. You also tell me that what are they doing? वे लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ वो बताइए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए आप, एनी एग्जाम्पल्स। Selling bangles. Some selling vegetables. Some selling bangles. Selling bangles. Selling vegetables. Some selling fruits. Selling fruits. Stationery books. Very good. You can see different type person. Suppose you are coming to school, you see that there are a lot of shops side of the road, and some are selling books, vegetables, cements, daria, art, toys. There are different professions, there are different shops, and in this way, they are different person are connected. So you can see, आप देखते रहते होंगे, right? When you see Yes, this type the person, when you see this type the person during the school timing, are you affected by them or not?
एंड व्हाई? क्या आप उनसे प्रभावित होती हैं या नहीं? टेल समथिंग। हो सकता है आपकी चॉइस में उस प्रोफेशन में न जाने को हो, तो ये भी आप शेयर यस सर, प्रभावित नहीं होते हैं। यस, We are not प्रभावित नहीं होते, हो सकता सर है कभी कभी होते भी हैं प्रभावित। सर कभी कभार लेकिन ऐसे Right. we affected from them. Listen next question. Sometimes we affected from them. Right, beta. But sometimes you find the chance to go to the hospital, any emergency case or any fever situation. That period so sure you see the activity of the doctors. We want to Nurses, become or hospital we want to So become that period, which type the idea move in your mind? किस प्रकार का विचार आपके दिमाग में चलता है? we want to become doctors. Sir, we are affected from them and we wish to become doctors. Very good, well done, very good idea. Become a doctor. Yes, so this is human nature. Listen, this is the human nature that if we go anywhere for any work, किसी भी काम के लिए हम जाते हैं, and if you are giving some time for his work, and that person is responding you very good idea, and he very gentleman, he is very truthful person, honest person, kind person, so sure you very affected by that particular person as well as that person behavior also, business also, talking manner also, everything that person activity effective, and that period you also want to become like that particular person. So this is the human nature. But sometimes we go anywhere for any working, and that person where you are going, that person behavior is not good, you are not satisfied with that person or that profession, that period you are not agree with his ideas or profession, and you don't like to go in that particular field, आप उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते हैं. This type also feeling sometimes appear या raise in front of you or not. जो हमने स्पोक किया है, बोला है, वो समझ में आपकी बात आ रही है क्या? Yes, सर चलिए आप कुछ ऐसा एक्टिविटी बताएं कि आप कहीं गए हो किसी काम के लिए और उस व्यक्ति से आप जो है सहमत नहीं हो पाए. टेल मी सम योर एक्सपीरियंस. कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि आप किसी वर्क के लिए गए हो और आप उनके वर्क से सेटिस्फाई नहीं हुए हो और वे आपको प्रभावित नहीं कर पाए हो, इस वजह से आप उस फील्ड में नहीं जाना चाहते हो. श्योर दिस टाइप द मिसिंग हैपन योर लाइफ इन द पास्ट. ऐसा हुआ होगा कभी? टेल, शेयर. यस बेटा. नो सर, नो सर. चलिए, डोंट माइंड. अगला क्वेश्चन. Why does the poet want to become a how waker? What is your answer? Tell me. how waker? Because he always Become a how waker because he want to street selling a like a how waker bangles. Sir, the poet want to become a how waker because it is no hurry to him and he take any road to go and moving place he not to any place. He do not hurry to go home. Yes, yes. और कोई? Okay. Next students. He have no place. He have no place to go. Must place to go on. चलिए, थैंक यू. सबका अलग अलग चॉइस है. कई बार ऐसा होता है कि हम मान लीजिए 2 फ्रेंड्स हैं, कहीं गए हुए किसी शॉप पे, तो किसी फ्रेंड को लगा कि नहीं ये प्रोफेशन अच्छा है, हम यही बनेंगे, हम डॉक्टर ही बनेंगे. दूसरा साथ में अगर हमारा साथी है वो सेटिस्फाई नहीं हुए
तो कहेंगे कि नहीं हम डॉक्टर नहीं बनना चाहते हैं। तो देयर आर डिफरेंट पर्सन एंड देयर आर डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट हॉबीज, डिफरेंट लाइकिंग, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, when the poet come from the school after closing or after over the school, what does he see on the way? जब वह स्कूल से लौट रहा होता है तो वह क्या देखता है? टेल मी। Poet saw the garden. He saw a gardener digging the ground. digging the ground. He saw a gardener He digging saw the a gardener ground. digging the ground. The ground. While coming from school to While home. coming from school to home. चलिए, वेरी गुड, वेल डन। What happened after that with poet? उसके बाद पोएट के साथ क्या घटना घटती है? इट मीन्स which type idea raised in his mind? उसके दिमाग में कैसा आइडिया? Poet want to become gardener. Poet want to become a gardener because Sir, he was accepted he from think gardener and he want to make a gardener. ground and no one dare to stop him. चलिए गुड, अच्छा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डिगिंग टाइम द गार्डनर क्लास एज वेल एज हिज पार्ट्स ऑफ बॉडी बिकम वेरी डस्टी। गंदा हो जाता है, डस्ट लग जाता है, कपड़े उससे गंदे हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ही नेवर डिसाइड टू गिव अप हिज प्रोफेशन। वो अपने व्यवसाय को, उस प्रकार के वर्किंग को त्यागता नहीं है। व्हाई? वह क्यों नहीं त्यागता है? आपके हिसाब से क्या रीजन हो सकता है? टेल मी। बेटा, say some lines. What is your idea? Can you again repeat? They satisfy their work. Sir, can you again repeat this? यस, एक बच्चा बोला है दे आर सेटिस्फाइड विथ दियर वर्क। बहुत सुंदर, वेरी गुड, वेल आंसर। क्योंकि वह अपने काम से संतुष्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल आते हैं, सपोज आप स्कूल आते हैं, कोई मिसिंग आपसे हो गई है, काम पूरा नहीं किया है, डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, तो कई बार टीचर आपको पनिशमेंट कर देते हैं, स्कोल्डिंग कर देते हैं, डांट देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्कूल को छोड़ दें, पढ़ाई बंद कर दें, स्कूल आना बंद कर दें। इसका मतलब ये नहीं है भाई। देखिए, देयर इज एवरीथिंग नीड particular time, proper time, discipline, everything is compulsory according to time. तो जहां पे जो कमी चल रही है उसको हमें कमी को रोकना है। अगर किसी कमी के लिए हमें मान लीजिए डांट फटकार या कोई ऐसी पनिशमेंट मान लीजिए मिल गई, तो हमें उसको निगेटिव में नहीं लेना, क्योंकि वो टारगेट पनिशमेंट का मतलब आपके पढ़ाई को छोड़ना, आपको टार्चर करना नहीं है। आपके द्वारा जो कमी चल रही है उसको रोकना होता है, राइट। तो लाइक दिस आल्सो, इफ दैट गार्डनर इज वर्किंग हिज field and if his parts of body are clad become dusty, he should not give up his profession. Reason is this, that this is his work and it may possible if you not working like that gardener, but also if you do anything, if you go market or shop or school or anywhere, in which area in which profession you are belong, sure you will feeling tired, sure your cloth will be dusty, होगा ना भाई। कपड़े गंदे हो सकते हैं, आप टायर्ड हो थक सकते हैं, यू मे बी आल्सो फील हरासमेंट। तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि नहीं आप उस प्रोफेशन को छोड़ दे, नहीं। जिस काम में जुड़ेंगे हमारे सामने जो है साइड इफेक्ट आता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, जनरल ऐसा होता है। आवर टारगेट शुड बी फिक्स and that target should be proper, and according to our target we should do our work. If you feel any type disturbance, we should try to solve that problem, that any type the creating disturbance, find the certain solution, but you should never try या never decide to give up that any profession in any bad situation या this type the situation। आप हमेशा जो है किसी भी सिचुएशन को
सॉल्व करने के लिए, उसके अच्छे स्थिति में लाने के लिए प्रयास जरूर करें, न कि अपने माइंड में निगेटिव ला करके उस प्रोफेशन को त्याग दें, छोड़ दें, रिजेक्ट कर दें, नहीं। तो ये सब चीजें आपके सामने आ रही। चलिए नेक्स्ट, what was the reason that the poet want to also become a watchman? Why? Next question, why does the poet want to become a watchman? Tell me. Anybody? The poet Sir, क्योंकि want to become watchman so that he could watch the city all night. He is satisfied with the work of watchman. Yes, beta. The poet want to That the become poet want to become a watchman because he is satisfied with the work of watchman. Very good, well done. चलिए, बहुत सुंदर। अब आगे देखिएगा बेटा, टाइम ज्यादा हो रहा है क्या? यस सर 50 मिनट हो गया है। Yes sir. 50 मिनट्स हो गए हैं। 40 मिनट्स के क्लास रहते हैं। यस, ये लोग पता नहीं टाइमिंग फिक्स नहीं किए हैं।